अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा JBN महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्थेचे सचिव मनोज कुमारजी कावडिया यांचा वाढदिवस कावडिया परिवार, जैन इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज आणि जैन नॉलेज सिटी यांच्या वतीने मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय। जैन इंटरनॅशनल स्कूल येथे ढोल ताशांच्या गजरात पुष्पवृष्टी करत मनोज कावडिया यांचे स्वागत करण्यात आले। यावेळी विद्यार्थ्यांनी मनोज कुमारजी कावडिया यांच्या जीवनावर आधारित नाटिका सादर करत मनोज कावडिया यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। तसेच चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी बहारदार असे नृत्य देखील यावेळी सादर केले। जैन नॉलेज सिटी येथे सर्व शाखांचे प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मनोज कावडिया यांचा सत्कार करत त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत। Winner 5, every day where we get to live, breathe and enjoy life is special. Even every moment of every day is special. Our birthday signifies our beginnings and the joy of life. Our birthday is a reminder to celebrate the life, to thank to life. Well, this is Ratna Patil attention. Please, on behalf of Jain International School, then I welcome today's program guests, management members and principal ma'am. In the celebration we all have gathered here, we all have gathered here to make this day, I mean birthday of Honorable Secretary Mr. Manoj Kumar Kavadia sir. आप हर मंजिल को पाए, आप हर दिन को नई खुशियाँ लेकर आए, आपका हर दिन खूबसूरत हो, यही है दुआ हम सबकी। आपको हर दिन इसी तरह कुछ खास हो, आपका हर दिन कुछ इसी तरह खास हो। सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। यह बात सच है कि छोटे छोटे खुशियों की पल हमारे जीवन को बड़ा बनाते हैं। किसी थिंकर ने एक बात कही है कि जिंदगी बेशक छोटी है पर महान होनी चाहिए। उल्लास, उमंग और खुशियों से ही जीवन महान होता है। इसी सच के साथ आज का हमारा दिन सभी के भले के लिए हो, सभी की खुशियों के लिए हो, तो आज का दिन हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। So please a huge round of applause to our Honorable Secretary Mr. Manoj Kumar Kavadia sir.
We welcome Kaudiya Parivar on Manoj sir's birthday celebration. Happy birthday to you, sir. Wishing you a day of joy. Wishing you happiness year ahead. Happy birthday to Manoj sir. फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन का सलाम भेजा है। जन्मदिन मुबारक हो मनोज सर आपको। जैन इंटरनेशनल स्कूल परिवार में ढेर सारी शुभकामनाएं। A very warm welcome to Honorable Chairman Rajkumar Kaudiya sir, Abhay sir, Savita ma'am, who is better half of Manoj sir, Mayur, all dignitaries. As today all of you know that today we are celebrating Manoj sir's birthday, but actually it was yesterday only on 26th of August. But as sir was not present in Jamner, he was out station, therefore we are celebrating his birthday today. Students, do you all know that life is mostly froth and bubble? Two things always come and stand across us. Kindness in others and troubles and courage in our own. So this courage, which we have seen in our ever motivating Manoj sir, where he always take calculated risks and that and courage. It's an idea which take one to the passion. So one idea came in sir's mind that we should establish education hub with an opening of Jain International School Jamner. Slowly those ideas came in his mind. Pistola cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes. The more you share, the more it expresses. Respected Dias on Chairman of Jain Knowledge City, respected Rajkumar Ji Kaudiya sir, Secretary of Jain Knowledge City, Manoj Ji Kaudiya sir, and all the respected dignitaries, very good morning to one and all. आज हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज स्कूल ने बुके लाया, केक लाए, बट सही मायनों में मनोज सर को क्या गिफ्ट चाहिए? तो ये चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय ये सोचे कि ये स्कूल मनोज सर की नहीं है, ये स्कूल मेरी है। हर बच्चा ये सोचे ये स्कूल में आना, ये स्कूल मेरी, इसके लिए मैं आ रहा हूँ। जब ये भावना सबके मन में आएगी, उसी दिन मनोज सर को बर्थडे की खुशी मिलेगी। अजब बन गया, गजब बन गया, अजब बन गया, गजब बन गया। जैन इंटरनेशनल स्कूल खुशियों का सबक बन गया। जो लोग समझ रहे थे जैन स्कूल को खुदा यारो, उन दीवानों के लिए ये एक मजहब बन गया, एक ये मजहब बन गया। 2010 में जैन इंटरनेशनल स्कूल इस्टेब्लिश हुई, ये सबको पता है। एक छोटे से गांव में आकर आज यहाँ पे, पर मैं आज ये स्टोरी बोलने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। जो कोविड का जो पैंडेमिक अपने पर आया, उस टाइम मनोज सर ने क्या किया, उस टाइम कितने चेंजेस जैन नॉलेज सिटी में आए। उस टाइम सभी लॉकडाउन चल रहा था, पर अकेले मनोज सर ऐसे थे जो 200 घरों का दीपक चला रहे थे। वो BMS कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आज लगता है कि आज इतने कॉलेजेस आ गए, ये सब हो गया, पर इसके पीछे की मेहनत किसी ने देखी होगी पास से, तो मैंने बहुत अच्छे से देखी है। मैंने वो मनोज सर भी देखे जो सुबह की दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के 7 बजे जाते थे, सेम डे रिटर्न आकर कि 7 o'clock की उनकी लैंडिंग होती थी, 10 o'clock तक वो घर पे पहुंचते, 1 बजे उनको वापस से बॉम्बे जाना पड़ता था। मैं सही मायने में पापा आपको बोलना चाहूँगा कि एक ठहराव आना चाहिए जिंदगी में। अभी भी मैं मतलब बोलने को मुझे भी शर्म आ रही है कि एक बेटा होकर मैं उनका अभी भी उतना साथ नहीं दे पा रहा हूँ जितना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। करने की बहुत चाहत है, पर इतना पता है कि पापा रहेंगे तो ही वो काम हो पाएगा। पर पापा अगले बर्थडे तक 100% कुछ ना कुछ और अच्छा, और क्या हम अच्छा कर सकेंगे वो देखना चाहेंगे। इन 2 सालों में 7 न्यू कॉलेजेस
7 न्यू कॉलेजेस की ओपनिंग अपने जैन नॉलेज सिटी में हुई है। बच्चों को वहां पर 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, एसी कैबिन में बैठते, करते क्या है? उनका ताज वही जाने, उनकी मेहनत वही जाने। हमें तो सब अच्छा लगता है। सारे वो सुबह से 10 बजे जब कॉलेज में जाते हैं तो रात को 8 बजे करके आते, वो एक ही टाइम का खाना खाते। मतलब उनको ना खाने का टाइम है ना पानी पीने का टाइम है। पर ये सब क्यों? ये किसके लिए? ये सब उनके बच्चों के लिए। जो जैन नॉलेज सिटी में एजुकेशन ले रहा है उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, उन्हें दी बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलने चाहिए। इसके लिए मेहनत चालू है। ऐसा है कि कभी कभी पापा को भी लगता है कि बहुत हो गया गलती, इतना सब कुछ करके भी लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पापा अभी बहुत हो गया। अभी भी पापा 7 दिन पहले नासिक थे, उसके बाद एक दिन ब्रेक, फिर नासिक, फिर नागपुर, फिर नासिक, और आज यहाँ पर कल बॉम्बे जाने वाले हैं। 53-54 का आज बर्थडे है, बट आज भी आदमी इतनी मेहनत कर रहा है। ये सब किसके लिए? ये सब आपके लिए कि तालुके का बच्चा कहाँ पर बाहर एजुकेशन लेने नहीं जाना चाहिए, उसे यहाँ पर ही बेस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए। ये सब उनका कोशिश। और आज वो आज ये बर्थडे मनाते खुशी कि आज सब उनके सपने साकार हो गए। प्रिंसिपल मैम ने तो बोला MBBS कॉलेज आने वाला है, मेडिकल यूनिवर्सिटी आने वाली है, बट उसके पीछे की मेहनत अभी मुझे नहीं लगता कि पापा ने अभी MBBS कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए। पर जिस बातों को हम नहीं बोलते पापा वही लेके चलते। इसके बाद और एक बात ये कहना चाहूँगा सभी को कि 2030 तक जैन इंटरनेशनल स्कूल, पापा का विजन ऐसा है कि जलगांव, भुसावल, धुले, यहाँ पे जैन इंटरनेशनल स्कूल की एस्टैब्लिशमेंट करना है। झुककर सीधा खड़ा हुआ। पापा आप झुक कर सीधे खड़े हुए, फिर भी झुकने का आपको शौक नहीं। आपके ही हाथों ये रचा इतिहास, अब किसी से मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, हालातों की भट्टी में जब जब भी तुम मुझको झोंकोगे, तब तक सोना बनूंगा मैं। तुम मुझे कब तक झोंकोगे? तुम कब तक झोंकोगे? थैंक यू वेरी मच। क्या करो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अभिष्ट चिंतन सोहळ्याच्या निमित्तानं व्यासपीठ संस्थेचे चेअरमन आदरणीय राजू कावडिया, माझे छोटे बंधू संस्थेचे डायरेक्टर अभय कावडिया, 53 वर्षाच्या कालखंडामध्ये गेल्या 28 वर्षापासून चांगलं वाईट गुन्हासह स्वीकारणारी माझी मिसेस सुसभिता कावडिया, लिटिल चॅम्प, तुमच्या सगळ्यांचा आवडता, खास करून जैन इंटरनॅशनल स्कूलचे सगळे टीचर्स, खऱ्या अर्थानं उभरतं हुआ नेतृत्व, मॅन ऑफ आयडियाज, माझा मुलगा मयूर कावडिया गेल्या 2010-11 पासून जैन इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये या क्षणापर्यंत प्रत्येक मिनिटाला, प्रत्येक क्षणाला आपल्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचं चांगलं काम आपल्या माध्यमातून, आपल्या नेतृत्वातून कसं करता येईल, त्या जैन इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्रिन्सिपल
फिरोजा खान मॅडम खऱ्या अर्थानं बिल्डिंग्स बांधणे, क्लासरूम रेडी करणं, विद्यार्थी येणं, पण त्या विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानदान आणि खऱ्या अर्थानं ज्ञानाचा एक झरा निर्माण करणं, ज्या तऱ्हेनं काम करणारी ही सगळी शिक्षक मंडळी अभिष्ट चिंतन सोहळा तरी क्लास पासनं सोशल मीडियावरनं फोन कॉल्स वरनं मला भेटणारी मंडळी खऱ्या अर्थानं मी 53 वर्षाचा झालो, 53 वर्षात काय केलं आणि येणाऱ्या काळात मी काय करावं याचं बळ निर्माण करण्याच्या शुभेच्छा कालपासून मला मिळाल्या. खऱ्या अर्थानं राजभाऊ, वाढदिवस म्हणजे काय? व्हॉट इज द बर्थडे? अब्दुल कलामने याचं उत्तर उदाहरण दिलंय की जेव्हा बाळ जन्माला येतं, तुषार सर, जेव्हा बाळ जन्माला येतं तेव्हा बाळ रडतं आणि तिची आई हसते, तो जन्म. आयुष्यामध्ये असा पहिलाच प्रसंग असतो की मुलगा रडत असतो, जन्म घेतलेला बॉल झालेला मुलगा आणि मुलगी ही रडते आणि आई हसते. याला जन्मदिवस असं म्हटलं जातं. आणि जीवन म्हणजे काय? की आम्ही जन्मलो, जेव्हा मृत्यूच्या दारामध्ये स्मशानभूमीमध्ये जाऊ, जन्मापासून घेतलेला श्वास स्मशानभूमीपर्यंत सोडलेला श्वास, याला जीवन असं म्हणतात. खऱ्या अर्थानं जीवन जगण्याची एक कला आहे. जीवन जगत असताना आपण कशा प्रकारचं जीवन जगतो आणि कशा प्रकारचं जीवन जगलं पाहिजे, हा एक खूप मोठा विषय आहे. की वाढदिवस साजरा करणं, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा स्वीकारणं म्हणजे आनंद सोहळा नाहीये. या वाढदिवसाच्या निमित्तानं माझ्यावर, कावडिया परिवारावर, माझे मोठे बंधू आदरणीय राजभाऊंवर ही अजून जबाबदारी वाढते की समाजाच्या कल्याणासाठी, समाजाच्या हितासाठी, माझ्या मुलांसाठी, माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी अजून शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जे काही चांगलं करता येण्याजोगं आहे ते करणं, तोच खऱ्या अर्थानं वाढदिवस साजरा करण्याजोगा आहे. मॅडमनी दाखवाच नाही की 2010 पासून जे इंटरनॅशनल स्कूलची स्थापना झाली आणि टीम डेट पर्यंत आपण काय केलं. खऱ्या अर्थानं मॅडम याच्यापेक्षा जास्त करता आलं शकू, आपण जास्त चांगलं करू शकलो असतो. अजूनही चांगलं काम करण्याची संधी आपल्याला उपलब्ध होती. पण असं म्हटलं जातं की जब जगे जब सवेरा. या मयूरी सांगितलं की बाप्पा असं असं केलं, बाप्पा असं करत आहात. बेटा ही काही मी उपकाराची काम करत नाही आहे. मी जन्माला आलो समाजाला देणं याच्यासाठी, समाज हितासाठी. माझ्या तालुक्यातला नव्हे, जिल्ह्यातला नव्हे, माझ्या राज्यातला नव्हे, माझ्या देशातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्ल्ड क्लास एज्युकेशन मिळालं पाहिजे
याच्यासाठी सातत्यानं प्रत्येक मिनिटाला आणि क्षणाला मला काम करता आलं पाहिजे. खऱ्या अर्थानं मॅडम एज्युकेशन घेत असताना बऱ्याच गोष्टीला अडचणीला आपल्याला समोर जावं लागतं. खऱ्या अर्थानं आपण सगळेजण या जैन इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्रांगणामध्ये, जैन नॉलेज सिटी मध्ये तुम्ही सगळेजण ज्या कर्तृत्वानं, ज्या मेहनतीनं, ज्या उद्दिष्टानं तुम्ही काम करत आहात, खऱ्या अर्थानं तुम्ही सगळ्यांनी जोपासली आहे. या वाढदिवसाचा मॅडम मी जेव्हा स्वीकार करेन की खऱ्या अर्थानं माझ्या विद्यार्थ्याला न्याय देत असताना, ज्ञानदानाचं काम करत असताना माझा हा विद्यार्थी तालुक्यात नव्हे, जिल्ह्यात नव्हे, तर महाराष्ट्रात नंबर 1 चा विद्यार्थी घडला पाहिजे, ही जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर आणि माझ्या खांद्यावर घेऊन घेतली आहे. खरं जर सांगायचं म्हटलं तर एज्युकेशन खूप जबरदस्त पॉवरफुल आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून गेले की एज्युकेशन हे वाघिणीचं दूध आहे, ते प्रत्येकाला मिळालंच पाहिजे, पेलंच पाहिजे. ते काम खऱ्या अर्थानं या पद्धतीनं जामनेर तालुक्यामध्ये आपण करत आहोत. मागच्या वेळेस बऱ्याच वेळेस मी बोललो की मंदिरं कमी उभारली तरी चालेल, पण एज्युकेशनची दारं ही सर्वसामान्य मुलांसाठी खुली केली पाहिजे. आणि तो करण्याचा परमेश्वरांनी आम्हाला संधी दिली, योग दिला, आणि त्या धर्तीवर आपण चालत आहोत. मला इथे बोलवलं, माझा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी अभिष्ट चिंतन सोहळा तुम्ही सगळ्यांनी ठेवला. खऱ्या अर्थाने मी प्रत्येक वेळेस म्हणतो की आयुष्यातली 53 वर्ष निघून गेली. उर्वरित आयुष्य जे काही असेल, परमेश्वराला मान्य असेल, ते उर्वरित आयुष्य माझ्या ह्या विद्यार्थ्यांसाठी मी जगेल. तुम्ही सगळ्यांनी आजपर्यंत दिलेलं बळ, शक्ती, पाठबळ हे मी माझ्या जीवनामध्ये ठेवेन. तुम्ही दिलेलं पाठबळ मला नवी शक्ती देते, नवी उमेद पैदा करते. वाढदिवस साजरा करण्याचा तुमचा हेतू काय असेल मला माहिती नाही, पण या वाढदिवसामधून मी एवढं घेतो तुषार की तुम्ही नवीन ऊर्जा मला देता, नवीन काम करण्यासाठी प्रेरणा देतात. एवढं प्रेम या माध्यमातून तुम्ही मला देतात. खऱ्या अर्थानं माझी उंची वाढवतात, अजूनही मला जास्त जगण्यासाठी जिद्द निर्माण करतात. खरंच आपले जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहे. मॅडम, आपण सगळ्यांनी ज्या पद्धतीनं मनुष्याला प्रेम दिलं, मोठं केलं, नवीन उद्दीने जगण्याची प्रेरणा दिली, ही आयुष्यात हा ठेवा मी जपून ठेवली. आपण सगळ्यांनी या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मी एवढंच सांगेन की माझ्या विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थानं न्याय द्या. त्यांची बुद्धीचं उच्चांक दिवसेंदिवस प्रत्येक मिनिटाला, प्रत्येक क्षणाला उंचवा. तीच वाढदिवसाची खरी भेट मला असेल. खऱ्या अर्थानं आपले सगळ्यांचे आभार मानतो. आपले सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जामनेर क्षेत्र में व्यापार, पढ़ाई और समाज को एक नया आयाम देने वाला था. अद्वितीय प्रतिभा और आत्मविश्वास की एक ऐसी मिसाल जिसे हम मनोज सर कावड़िया के नाम से जानते हैं. पिता श्री प्रकाश चंद्र और माता शकुंतला देवी, इनकी आंखों का तारा, उनका राज दुलारा.
श्रीमान प्रकाशचंद्र जी के घर सन 1971 में जन्मा एक अनमोल रतन। जिम्मेदारियां सीखते हुए वे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला और इसी के साथ किशोर अवस्था में उनकी शादी सविता देवी से कराई गई। अपने पिता का अनुसरण करते हुए और आज्ञा पालन करते हुए वे सदैव समाज, परिवार और देश के प्रति अपने कार्य का निर्वहन करते रहे। इनकी 2 पुत्री और 1 पुत्र ऐसी संतान है जिनमें विनीता जी, मोनाली जी और मयूर जी यह शामिल है। जन्म 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 साथ चलना है, कसम तुम्हें कसम माँ की मिलना है। एक जान है भले 2 बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कहीं ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम है, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कहीं ना कहना अलविदा। एवं इनके बड़े भाई राजकुमार सर कावड़िया, जिनके कंधों से कंधा, कदमों से कदम मिलाते हुए इस जिम्मेदार व्यक्तिमत्व ने कभी परिवार और व्यवसाय के बीच कुछ भी असंतुलित नहीं होने दिया। अपने इतने बड़े कारोबार की जिम्मेदारी उन्होंने खूब निभाई और कई दिक्कतों का सामना करते हुए 2010 में जैन इंटरनेशनल स्कूल की निर्मित करते हुए अपने शिक्षा क्षेत्र में पहला कदम बढ़ाया। यहीं तक सीमित न रहते हुए उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में दूसरा कदम बढ़ाते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया। उन्होंने बिछड़े हुए समाज के लिए भी शिक्षा क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए हमारे आदिवासी बच्चों के लिए सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा का दरवाजा खुला कर दिया।
होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी रिसर्च, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इन सभी का निर्माण करते हुए अन्य छात्रों के लिए भी शिक्षा का अवसर प्रदान किया। के महान कार्य करते हुए, इस महान रत्न की प्रशंसा करते हुए 2023 में जिला स्तर पर उन्हें खानदेश रत्न से नवाजा गया। कार्य करने वाला कभी रुकता नहीं, रुतबा ही ऐसा हो जो कभी झुकता नहीं। अरे गाँव क्या हम कहीं भी कार्य कर दिखलाएंगे, गाँव क्या हम कहीं भी कार्य कर दिखलाएंगे। अरे देश क्या हम विदेशों में झंडे लहराएंगे, हम विदेशों में झंडे लहराएंगे। The next Business Excellence Award goes to Khandesh Ratna Shri 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 Manoj Sarji Kaudiya. Yeah.
मनोज सर का बर्थडे के लिए आप सब पूरा 100 बच्चे आए हैं। मनोज सर का बर्थडे तो कल का ही था और कल का मौका भी अच्छा था, जंगल सर ने बोला है। पर वो बर्थडे कल नासिक में आया था, तो वो लेके हैप्पी बर्थडे टू यू मनोज सर। और मनोज सर के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मैंने मनोज सर का फोटो भेजा है, विश करा है मनोज सर को। मनोज सर को बर्थडे का विश करा है। मैंने मनोज सर को बोला कि मनोज सर आप मेरे भाई तो हो पर मेरा दोस्त हो, क्योंकि मनोज सर को दोस्त करना चाहिए। मनोज सर मेरा छोटा भाई जरूर है पर दोस्त है। और एजुकेशन फील्ड में काम करना ये हमारी सोच है कि हम जितना अच्छा दे सके उतना अच्छा देने का हमारा विज़न है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ कठिनाइयाँ कुछ आती रहती है, डिस्प्यूट है। हम तो जब 15 अगस्त को मैंने भाषण सुना और एक जोहा का और दूसरी बच्ची का, वो बच्ची उसका जो एक एक शब्द था वैसा रोंगटे खड़े करने वाला था। तो मेरा ऐसा कहना है कि हर बच्चा, मेरे कॉलेज का हर बच्चा ऐसा खड़ा हो जाए कि उसका एक एक लफ्ज में सुनूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए। और ये सब जवाबदारी आप सब स्टॉप पर है। मेरा हर बच्चा, हर फील्ड का बच्चा आपको रेडी करना है, अच्छा करना है। और आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मदद लगे तो मनोज सर हम लोग कैंपस में रहते हैं। मैं तो कैंपस में बस 2-4-5 लोगों को नाम से पहचानता हूँ, मेरे को कोई पहचानता कि नहीं, मेरे को शंका है। तो आज सर मैंने मनोज सर को अभी मुझे जमदार सर ये है क्या, मैं तो टीपी को जमदार सर समझ रहा था। तो ये मेरी हालत है। मनोज साहब करके है, जैन साहब आदिया है, और सबको पहचानता हूँ। और खास कर भावस्कर सर को ज़्यादा पहचानता हूँ कि भावस्कर सर से मेरी बात होती है और किससे होती नहीं होती है। और लेडीज स्टाफ में मेरे को पहचानते नहीं, मैं सिर्फ मकासरा मैम को पहचानता हूँ। और दूसरे पर में हमारे लोखंडे ताई, लोखंडे हमारे परिवार के हैं, हमारे गांव के, हमारे बेटावत के हैं। और जो जगन वाला जो बोलते मेरे मामा हैं, तो ये इनका भी अंदर परिवार है। तो आपने पहचानने का कोई ऐसा विशेष नहीं है। पर आपको सबको मेरी एक विनंती है, मनोज सर को सेलिब्रेशन आपको बर्थडे का कुछ देना है, आपको कुछ गिफ्ट मनोज सर का जो होना है आप बिल्कुल हक से मांगिए। और मनोज सर जो आपको नहीं देंगे वो सिर्फ मेरे पास एक फोन करना हो जाएगा। और बच्चों के लिए क्रिकेट ये सब चालू कराए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू कराए। कोई ऐसा मुहूर्त लेना है, किसी उद्घाटन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार चालू कराए बच्चों को। और दूसरा बच्चे, होटल के बच्चे जो आए हैं उनके लिए खास कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जो ब्राह्मण लाया है नया, तो एक बार आपका वेट कर लीजिए। अभी जो होटल में उनका मेरे को 1 महीने बाद आपका वेट का, आपका खुद का वेट दीजिए कि वजह कुछ वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार.